Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. In this video we are going to discuss about Communist Party of India, Marxist. As you know, it was a part of Communist Party of India, means CPI, and it is CPIM. It was separated from CPI in 1964. And the party believes in Marxism and Leninism, means it believes on the theory of Karl Marx as well as Vladimir Lenin. The party supports socialism, secularism and democracy. Such type of Communist Party of India that wants to establish socialism but with secularism under the democracy. हमारे यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की यही विशेषता है कि ये सोशलिज्म स्थापित करना चाहती है लेकिन सेकुलरिज्म के साथ डेमोक्रेसी के अंतर्गत. द पार्टी अपोज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, नॉट कम्युनल. यह साम्राज्यवाद और संप्रदायवाद दोनों का विरोध करती है. कम्युनलिज्म द पार्टी accept democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. Actually, the establishment of socio-economic justice is the main object of CPIM. But under the democratic election or through democratic election, because it is a good means for securing the socio-economic justice. इन लोगों के अनुसार सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन के माध्यम से ही हो सकती है और इसे वो एक्सेप्ट कर चुकी है. इट इज़ द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द Communist Party of China and Communist Party of India. The party is critical of the new economic policy that allows the free flow of foreign capital and goods into the country. Means the party wants to fulfill or develop first the country's economy. So it oppose the globalization and liberalization. Liberalization because foreign capital is a type of imperialism, economic imperialism. Due to it started to oppose the flow of foreign capital and goods. विदेशी पूंजी और विदेशी सामान का यह विरोध करती है और उन सारी नीतियों का जो विदेशी पूंजी और वस्तु को यहाँ आने की अनुमति देता है. मीन्स ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन. द पार्टी इज इन फेवर ऑफ पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया. यह पार्टी जो है वो गरीबों के फेवर में है, फैक्ट्री वर्कर के फेवर में है. यही कारण है कि विदेशी कैपिटल को और गुड्स को पसंद नहीं करती है. विदेशी कैपिटल आएगा तो शोषण करेगा वर्कर का, गरीबों का, और गुड्स आएगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैलेगी.
यही कारण है कि इन फेवर ऑफ पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबरर एज वेल एज इंटेलिजेंसिया, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, किसान हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं और गरीब हैं, उसका यह सपोर्ट करती है। द पार्टी हैज़ गुड सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। द पोजीशन ऑफ द पार्टी इज सो गुड इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। द पार्टी इज इन coalition और द पार्टी is under coalition of UPA. It is a coalition partner of UPA with Congress. The party has been in power in West Bengal without a break for the last 30 years. 30 सालों तक वेस्ट बंगाल में इसने शासन किया। Now, Trinamool Congress is present, but before it, CPIM was present in West Bengal. In the Lok Sabha election 2K14, party could win only 9 seats, while in 2K19 election only 3 seats. It shows the popularity of the party is going to decrease or has been decreasing. लोकसभा इलेक्शन में यह देखा जा रहा है कि इस पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम रही है। 2014 में 9 सीट जीती, जबकि 2019 में मात्र 3 सीट जीत सकी। अब तुम समझ सकते हो कि इसकी क्या लोकप्रियता और किस हिसाब से घटते जा रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। The party was formed in 1925, before the independence. Means after the Congress party, it is the oldest party of India. Just after the revolution of Russia, the party was established under the influence of Russia. It believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. It wants to establish the theory of Karl Marx, Vladimir Lenin, as well as support the secularism as well as democracy. The party is in against the forces of successionism and communalism. यह वंशवाद और संप्रदायवाद का भी विरोध करती है। लेकिन क्या आश्चर्य की बात है, यह वंशवाद का विरोध करती है, लेकिन यह यूपीए का अंग है और यूपीए मीन्स कांग्रेस, और कांग्रेस में वंशवाद है। जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी नंबर में है। द पार्टी एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर्स। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सपोर्ट करती है, क्योंकि इसके अनुसार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही वह साधन है जिससे हम कामगार क्लास, फार्मर्स और गरीबों के हितों को पूरा कर सकते हैं। एज वेल एज इट हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका अच्छा खासा प्रभाव केरला पर है, वेस्ट बंगाल पर है। ये दोनों में तो CPIM का भी है, लेकिन इसके अलावा पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर्स जस्ट लाइक CPIM। इसकी भी लोकप्रियता धीरे धीरे घटते जा रही है। इट एडवोकेट्स
the coming together of all left party to build a strong left front। यह बराबर वकालत करती है कि जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं, वामपंथी हैं, वो सब मिल करके एक लेफ्ट फ्रंट बनाओ। जैसे एनडीए, यूपीए, इसी तरह से लेफ्ट फ्रंट। यह ज़्यादा आक्रामक है सीपीआई एम के बनिस्बत। इट इज ऑल्सो ए coalition partner of UPA, as well as in 2K14 general election, party was able to win only single seat। जबकि आप जानते हो केरला में इसकी सरकार है, आप जानते हो कि केरला में इसकी सरकार है, उसके बाद सिंगल सीट जीत पाई है। वाह रे पार्टी। Now we are going to discuss about NCP, Nationalist Congress Party। The party was formed in 1999। Actually it was separated from Congress। The party espouses democracy, Gandhian secularism, equality, social justice and federalism। यह पार्टी जोर देती है डेमोक्रेसी पर, गांधीयन सेकुलरिज्म पर, इक्वलिटी पर, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पर। द पार्टी वाज फॉर्म बाय शरद पवार, पी ए संगमा एंड तारिक अनवर। 3 फाउंडर आर प्रेजेंट ऑफ द पार्टी। यू हैव हियर्ड अबाउट शरद पवार। पी ए संगमा वाज रिलेटेड टू मणिपुर। The party wants that high offices in government be confined to be natural born citizen of the country। यह पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट में जो भी ऊंचे पद हैं वो प्राकृतिक रूप से जिसका जन्म भारत में हुआ है वैसे ही व्यक्ति को बनाया जाए। याद कीजिए, इंद्र कुमार गुजराल रिफ्यूजी थे, मनमोहन सिंह रिफ्यूजी थे, मतलब इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और ये लोग भारत के प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी जन्म इटली में हुआ। इसी बात पर एक कांग्रेस से अलग हुए। क्योंकि उस समय जिस समय आई के गुजराल बने थे उस समय शरद पवार काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस के। उनको नहीं बना करके पाकिस्तान में जन्मे व्यक्ति को बनाया, जिसके कारण कि वो पार्टी से अलग हो गए। इट इज़ द मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की यह सबसे बड़ी पार्टी है शिवसेना के बाद। इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम ड्यू टू पी ए संगमा। इसका प्रभाव मेघालय, मणिपुर और असम में है क्योंकि पी ए संगमा मणिपुर के थे। इट इज ऑल्सो अंडर द अलायंस ऑफ यूपीए। यह भी कांग्रेस के गुट में है। इन द 16th लोकसभा इलेक्शन पार्टी हैज वोन 6 सीट्स एंड द पार्टी वांट टू एबोलिश डायनेस्टिक सक्सेशन। इसके अलावा यह विरोध करती थी कि कांग्रेस में वंशवाद समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं रहा। जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल। क्या है ये वंशवाद है। एंड ड्यू टू the separation had happened from Congress। Thanks। The next topic will be discussed in the next video। Thanks।